A very good morning to my dear students. So students, in previous lecture we have learned about diet, where we have saw from the diet food we get vitamins, proteins, calciums, ions and fats. Food like vegetables, fruits, meat, egg, food grains, nuts. From this all type of food we get energy, we get vitamins, we get ions, we get fibers, and this type of food help us to be strong, give us energy to work and play. So this was all about diet. Then we have saw we need food to live and grow. To live and grow we need a food. Then food gives us energy to work and play. If we consume healthy food, we get energy to work and play. Our mind get fresh. Then we have saw 4 chart, where we have saw in first chart about cereals and pulses, about bread, cereals, grains, pulses. Then in second we have saw about vegetables like tomato, carrot, brinjal, cauliflower, ladyfinger, etc. Then in fruits we have saw various types of fruits such as apple, mango, banana, pomegranate, strawberry, lychee, cherry, etc. Then in last chart we have saw about fish, egg, meat, milk, ghee, etc. Then we have done an activity where we have circled the correct word. So the first one was I eat with my mouth closed. So we have circled closed. I like to be quiet when I eat. I like to stand when I drink milk. I wash my hands before eating. I must drink a lot of water. I eat breakfast in morning. After I come back from school in evening, I have snacks. So this we have done in our EVS combined book on page number 91. Then again they have given us an activity where they have told us to write or to draw or to paste 2 things that we like to eat for. So in breakfast we have wrote tea, roti and jam. Then in lunch we have wrote rice, roti, dal. Then in snacks we have wrote sandwich, fruits, tea. Then in dinner we have wrote rice, curry, vegetables and salad. So this we have done in our previous lecture, that was diet. I hope you have understood our previous lecture, that is diet. Okay students, now let's move further. Now in today's lecture we are going to see the next topic. So students, are you ready to learn the next topic? Very good. So without wasting your time, kindly open your EVS combined book, page number 92. Okay, so let's start with a new topic, that is cleanliness. CLEANLINESS, cleanliness. So students, what is mean by cleanliness? Cleanliness यानी क्या? Cleanliness is a clean thing. जो थिंग को हम क्लीन करते हैं उसको ही क्लीनिनेस कहते हैं. जैसे कि आप अपने घरों में क्लीनिनेस रखते हो कि नहीं? येस और नो? येस. यू कीप योर हाउस क्लीन और नो? येस. लाइक दैट यू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, you keep your school clean, you keep your holy
places clean, you keep everything clean. Why you keep clean? Because if you will not keep clean, then automatically it will affect yourself. अगर हम कोई भी प्लेस क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो हमें ही चोट पहुंचाने वाला है, वो हमें ही बहुत सारा पेन देने वाला है. कैसे? अगर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर को क्लीन नहीं रखोगी तो क्या होगा, अगर आप अपने घरों में जहाँ पे आप बैठते हो वहीं पे ही कचरा डालोगे, जहाँ पे आप खाना खाते हो वहीं पे ही कचरा डालोगे, तो क्या होगा, जो उसके ऊपर इंसेक्ट्स बैठेंगे वो अपने खाने पे भी आएंगे. अपने खाने पे बैठने के बाद क्या होगा, आप वही फूड को कंज्यूम करोगे. जब आप वही फूड को खाओगे तो आपके बॉडी के अंदर भी वो डिजीज़ जाएगा और फिर आपको बीमारी हो जाएगी, आपको बहुत सारी बीमारियों का शिकार बनना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका पहले जो भी थिंग प्लेस है वो क्लीन रखना पड़ेगा, तो ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे और तो ही आप स्ट्रांग रहेंगे. सो क्लीनलीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो. तो क्या क्या थिंग आपको क्लीन रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको क्लीन रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका घर, आपको आपका हाउस क्लीन रखना है. यू हैव टू कीप योर हाउस क्लीन. इफ़ यू विल कीप योर हाउस क्लीन, ऑटोमेटिकली यू विल ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस. अगर आप अपने घरों को क्लीन रखोगे तो आप भी बीमारियों से दूर रहोगे. फिर आपको आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपका साइड, घर के बाजू की जो जगह है उसको भी क्लीन रखना है. तो आप कैसे क्लीन रखोगे, तो जो भी कचरा, जो भी गार्बेज है वो आपको आपके डस्टबिन में डालना चाहिए, रेगुलरली डस्टबिन में डालना चाहिए. नेवर स्प्लिट द गार्बेज आउटसाइड, यू हैव टू थ्रो ऑल द गार्बेज इन डस्टबिन. जो भी कचरा है वो आपको डस्टबिन में डालना है, आपको घर के बाहर ऐसे ही फेंक नहीं देना है. कोई जो इंसान है वो क्या करते हैं, वो कचरा अपने जो बड़े बड़े पुराने वेल्स है उनके बाजू में जाके फेंक देते हैं. दैट इज़ बैड हैबिट, दैट इज़ नॉट अ क्लीनलीनेस. अगर आपको आपका सराउंडिंग क्लीन रखना है तो आपको कचरा डस्टबिन में डालना है, और जो डस्टबिन में डाला हुआ कचरा है, द garbage that is been thrown in dustbin, you have to put that garbage in a big bag and you have to give that bag to a कचरा वाला. तो जब भी आप कचरा डस्टबिन में डालते हो, वो डस्टबिन का कचरा आपको कहाँ पे देना है, तो आपको आपके घर पे जो कचरा वाला आता है, जो कचरा कलेक्ट करने के लिए आता है, उनके पास आपको आपका कचरा देना है. वो कचरा आपको बाहर एनवायरनमेंट में स्प्लिट नहीं करना है. जो कचरा कलेक्ट करने के लिए आते हैं उनके पास आपको आपका कचरा देना चाहिए. तो आपका जो विलेज है या आपका जो सराउंडिंग है वो आप लोग क्लीन रखना है, आपको वहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है. फिर आपका स्कूल इज़ योर्स. स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आप आते हो, अगर आप स्कूल में पेंसिल शार्पन करके अगर आप नीचे फेंक देते हो, दैट इज़ बैड हैबिट. आप अपना क्लासरूम, अपना स्कूल क्लीन नहीं रखते हो, सो दैट इज़ बैड हैबिट. तो आपका आपका स्कूल क्लासरूम क्लीन रखना है. तो कैसे रखोगे, अगर आपको पेंसिल शार्पन करनी है, अगर आपको पेपर फेंकना है तो आपको जाके वो डस्टबिन में फेंकना है. इफ़ यू वांट टू शार्पन योर पेंसिल, इफ़ यू वांट टू थ्रो अ garbage, you have to go and throw in dustbin. If you will throw in your classroom, so that is bad habit. So you can't keep your classroom clean. So you have to throw all the garbage in dustbin, and you have to clean your classroom. If you will clean your classroom, then your classroom will look neat and tidy, and you will feel good to study in that neat and tidy classroom. अगर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लासरूम गंदा होगा तो आपको वो क्लासरूम में पढ़ाई करने का मन होगा नहीं, आपको स्मेल आएगा, आपको वो कचरा परेशान करेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो अगर आपका क्लासरूम क्लीन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. सो यू हैव टू कीप योर स्कूल, योर क्लासरूम क्लीन. सो दिस आर ऑल द प्लेसेस where you should keep your surrounding, your house, your classroom clean. Even whenever you're going from a road, जब भी आप रास्ते से जा रहे हो या जब भी आप कोई बीच या कोई ऐसे प्लेस पे जा रहे हो, रिसोर्ट या कोई होटल में जा रहे हो,
तो आपको वहाँ पे भी कचरा ऐसे फेंक नहीं देना है। आपको जो भी कचरा है, जो भी गार्बेज है, वो आपको कलेक्ट करके प्रॉपर डस्टबिन में, जो प्रॉपर जो प्लेस है उधर ही फेंक देना है। सो दिस इज गुड हैबिट। Cleanliness. Clean surrounding help us to lead a good and healthy life. Keeping classroom and school clean is very good habit. See, यहाँ पे उन्होंने बोला है cleaning surrounding help us to lead a good and healthy life. अगर आप अपना सराउंडिंग क्लीन रखोगे, अगर आप कचरा अपने घरों के बाजू में या घर के अंदर या गांव में नहीं फेंकोगे, रास्ते के किनारे पे या कोई भी प्लेस पे ऐसे डायरेक्ट नहीं फेंकोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी प्लेस है वो क्लीन रहेगी, क्योंकि उसके उधर कचरा ही नहीं होगा। अगर कचरा नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होगी। अगर वहाँ पे, अगर वो जो प्लेस है वो क्लीन रहेगी तो वहाँ पे बीमारियों का कोई ये ही नहीं होगा, शुरुआत ही नहीं होगी। तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो खुद की हेल्थ है वो फिट और फाइन और गुड रहेगी। आप जो बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर वही प्लेस पे अगर आप कचरा फेंकोगे आपके घर के बाजू में, आपके घर के अंदर, रास्ते के साइड में, तो क्या होगा, वहाँ पे इंसेक्ट्स आएंगे। वो कचरे के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे। वो कचरा वहाँ पे ही रह के वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे गंदा स्मेल आने के लिए चालू होगा और ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को वो इफ़ेक्ट करेगा और आपको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपका सराउंडिंग क्लीन रखना है। क्यों क्लीन रखना है? क्लीन रखने से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हम फिट एंड फाइन रहेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है अगर हमारा सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है। हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और हमें कोई भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो क्लीनिंग सराउंडिंग हेल्प अस टू लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ एंड कीपिंग क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन इज़ अ वेरी गुड हैबिट। और अगर आप क्लीनलीनेस फॉलो करते हो, आप हर चीज़ क्लीन करके रखते हो, आप कहीं पे भी कचरा नहीं फेंकते हो, तो आप गुड हैबिट फॉलो करते हो, आप गुड गर्ल और गुड बॉय हो। तो अगर आप क्लीनलीनेस फॉलो करते हो तो यू आर अ गुड गर्ल और यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड सिटीजन्स। आप एक गुड सिटीज़न हो क्योंकि आप अपना घर, अपना सराउंडिंग, अपना देश को क्लीन रखते हो। सो कीपिंग क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन इज़ अ वेरी गुड हैबिट। Now students, in your EVS combined book on page number 92, they have given us a 4 picture. In that 4 picture, they have shown the cleanliness of each and every picture. So let's see one by one picture. The first picture is of my house. In my house picture, you can see a lady and a child is cleaning the house. तो वो जो लेडी है वो जो बच्चे है उसकी मम्मी है। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो वो दोनों अपने घरों को क्लीन कर रहे हैं। वो जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स को हाउस क्लीनिंग करने के लिए हेल्प कर रही है। यू कैन सी दैट गर्ल इज हेल्पिंग हर मदर टू क्लीन हर हाउस। सो द गर्ल इज क्लीनिंग ऑल द थिंग्स दैट इज आर ऑन टेबल विथ हेल्प ऑफ अ क्लॉथ। तो वो जो लड़की है वो जो सामान रखा है वो कपड़ा लेके पोंछ रही है। एंड द मदर इज क्लीनिंग द फ्लोर बाय टेकिंग अ ब्रूम इन अ हैंड। तो वो जो मम्मी है वो क्या कर रही है, अपने हाथों में झाड़ू लेके घर का पोछा मार रही है। सो यहाँ पे ये पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, एक लड़की और एक मम्मी वो घर साफ कर रही है। सो वन मदर एंड हर डॉटर इज क्लीनिंग द हाउस। सो यहाँ पे the cleaning of house is been going on. So you can see in that picture the cleaning of the house is going on. That girl is helping her mother to clean her house. Okay, then the second picture at the side you can see that is my surrounding. My surrounding, in that picture, this picture is of the village. आपके घर के बाजू में जो जगह है वहाँ पे कचरा है। सो क्या हो रहा है, तो वहाँ पे सब गांव वाले, सब गांव के लोग एक साथ आके वो अपने गांव को क्लीन कर रहे हैं। गांव जो सराउंडिंग में कचरा है वो कचरे को क्लीन करके एक साथ एक डस्टबिन में डाल रहे हैं।
सो यहाँ पे वो क्या कर रहे, अपने सराउंडिंग, अपने गांव को क्लीन कर रहे। जो भी कचरा घर के आजू बाजू में है, अपने सराउंडिंग में है, अपने एनवायरनमेंट में है, उसमें वो सब लोग एक साथ आ रहे हैं। ऑल पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर क्लीनिंग देयर सराउंडिंग। सो यू शुड ऑल्सो हेल्प your villager, your family member to clean your surrounding by coming together. All of you have to come together and have to clean your surrounding. So in that picture you can see all the villagers are coming together and they are cleaning their village, their surrounding. Okay, then the third picture is of the school, my school surrounding. You can see all the students, all the teachers, all the sir are I have came together and they are cleaning. वो क्या करें, सब बच्चे, टीचर्स और सर एक साथ आके वो जो स्कूल के बाजू में कचरा जमा हुआ है वो एक साथ साफ कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे ही एक सर और दो बच्चे क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो गो ग्रीन गो क्लीन, अगर आप क्लीन कर रहे हो तो आपको ग्रीन यानी आपको बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि आधे बच्चे वो स्कूल का सराउंडिंग क्लीन कर रहे हैं और आधे बच्चे पौधे लगा रहे हैं। सो दिस इज द पिक्चर इज ऑल अबाउट माई स्कूल सराउंडिंग, यू कैन सी इन दैट पिक्चर। ओके, देन द लास्ट पिक्चर, फोर्थ पिक्चर इज ऑफ माई क्लासरूम। जो क्लासरूम में आप खुद पढ़ते हो वो क्लासरूम भी आपको क्लीन रखना चाहिए। अगर आप क्लासरूम क्लीन नहीं रखोगे तो आपका वहाँ पे पढ़ाई करने का मन नहीं लगेगा। इफ यू विल नॉट कीप योर क्लासरूम क्लीन, यू विल नॉट फील टू स्टडी इन दैट क्लासरूम। डर्टी क्लासरूम में किसी का भी स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका क्लासरूम नीट, क्लीन, टाइडी और फ्रेश रहेगा तो आपका मन बहुत अच्छा आपका मन बहुत अच्छा होगा कि आपको बहुत पढ़ाई करने का मन होगा। सो यू शुड कीप योर क्लासरूम क्लीन। तो आप कैसे क्लासरूम क्लीन करोगे, जो भी गार्बेज है वो नीचे नहीं फेंकने का, बेंच के नीचे नहीं फेंकने का। तो आपको वो गार्बेज उठा के डस्टबिन में फेंकना है। अगर कोई बच्चा नीचे फेंक रहा है तो उसको बोलने का कि दिस इज बैड हैबिट, यू हैव टू पिक दैट गार्बेज एंड यू हैव टू थ्रो इन द डस्टबिन। सो यू हैव टू क्लीन योर क्लासरूम। So in this 4 picture we have saw about cleanliness, that is cleanliness in my house, cleanliness in my surrounding, cleanliness in my school surrounding and my classroom. So I hope you have understood this 4 picture. Now students, in your EVS combined book on page number 92 and page number 93 they have given us an activity. So the activity is you have to cross the wrong picture. तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए हैं और वहाँ पे जो पिक्चर में आपको गार्बेज स्प्लिट दिख रहा है, हर जगह पे गार्बेज दिख रहा है, हर जगह पे कचरा दिख रहा है, जो क्लास या जो प्लेस आपको अनटाइडी दिख रही है, विदाउट क्लीन दिख रही है, वो पिक्चर को आपको रॉन्ग मार्क करना है। तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्लासरूम। तो यहाँ पे 2 क्लासरूम दिख रहे हैं, उसमें से पहले क्लासरूम जो है वो क्लीन है और सेकेंड क्लासरूम जो है वो क्लीन नहीं है। तो आपको सेकेंड क्लासरूम को क्रॉस करना है। सो डू क्रॉस टू सेकेंड पिक्चर। ओके, नाउ पेज नंबर 93 देयर इज 2 पिक्चर्स शोन। इन फर्स्ट पिक्चर you can see the man is throwing garbage in dustbin, and in second picture the man is throwing garbage in, he's not throwing garbage in dustbin, he's throwing garbage outside the dustbin. जो सेकेंड पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है कि जो एक इंसान है वो क्या कर रहा है, आदमी है, जो एक आदमी है वो पहले पिक्चर में गार्बेज को डस्टबिन में डाल रहा है और सेकेंड पिक्चर में वो गार्बेज को बाजू में, कचरे को डस्टबिन के बाजू में डाल रहा है. सो दैट इज रॉन्ग. सो यू विल पुट रॉन्ग टू सेकेंड पिक्चर. So in first picture it was all about classroom. First classroom was clean and second classroom was dirty, so we have put cross to second classroom. And in page number 93, first picture was man is throwing garbage in dustbin, which is correct, and in second picture man is throwing garbage outside the dustbin, so that is wrong, so you will put wrong. Now there is an activity given, that is color the picture. So you have to
color the picture which is given below. So let's start coloring the picture. See how the little children puts waste into the dustbin. We should always do this everywhere to keep us around. तो हमें ये वो पिक्चर में क्या दिख रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, गार्बेज को उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं. तो हमें भी वैसे ही करना है. So let's color that picture. So let's start coloring it.
So students, now let us recap what we have learned in today's lecture. In today's lecture, we have saw about cleanliness of our school, of our house, of our surrounding, of our environment. Then we have saw cleaning surrounding help us to lead a good and healthy life. Then we have saw keeping classroom and school clean is a very good habit. Then we have saw 4 types of picture where we have saw the cleanliness. First picture was my house, second picture was my surrounding, third picture was my school surrounding, and fourth picture was my classroom. Then we have done an activity where we have put a cross mark to a wrong picture. Then we have done a second activity where we have colored the picture. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, you will complete your EVS combined book page number 93 and page number 92. सो आप अपनी EVS कंबाइन बुक का पेज नंबर 92 और 93 कंप्लीट करने वाली. ये 2 पेज कंप्लीट करने के बाद ये दोनों पेज का फ़ोटो खींच के मुझे आप भेजने वाले हो. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2 पेज यू विल take a photo of this page and you will send it to me. So this is your homework. So I hope you will complete it. So till then students, thank you.